suppose we are interested in descriptive statistics of various variables. So the command is go to analyze, go to descriptive, and go to descriptive. Move all the variables in which you are interested. जो भी variables हैं वो आप क्लिक करके variable window में put कर दीजिए, then click on OK. Now you get the output of the descriptive statistics. How to find these descriptive statistics? Now come to the SPSS file. This is your SPSS file as per our questionnaire, which was seen by yesterday. Yesterday we were talk about this hypothetical data. I have this file, SPSS file, और इस बारे में हमने कल डिस्कस किया था सारे एस्पेक्ट्स को. तो सपोज आई एम इंटरेस्टेड इन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. ये फाइल शो हो रही है सबको? Yes, this SPSS file. Yes, anyone? Any interruption in the SPSS file? Okay, so we are interested in descriptive statistics. Just go to descriptive, go to descriptive. The command is analyze, go to descriptive, then again go to descriptive. So what are the variables in which we are interested? Suppose we are interested in health score, we are interested in personality score, and we are interested in age of a person. So we are interested, suppose हेल्थ स्कोर, पर्सनालिटी स्कोर एंड एज स्कोर में हम इंटरेस्टेड हैं और हमें उसका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पता करना है. गो टू ऑप्शन. By default it contains mean, SD, maximum value, minimum value, skewness, kurtosis are there. So in which you are interested, just click on it. Mean is there, click on it. Sum is there, if you are interested in sum, click on it. Standard deviation, minimum value, maximum value, and standard error of mean. Click on skewness and kurtosis. Click continue, click OK. Then come to the output window. See the output window. देखिए हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं टोटल. File Health is not visible, sir. Yes. File is not visible. Okay, just wait. That's why I asked you that file is visible or not. Now it is visible. This file Yes, is sir. visible. Yes, sir. Okay. Yes, sir. And what about this file, output? Output file is visible. Yes, sir. Yes, sir. No? Visible. Visible. Okay, thank you. Now descriptive statistics. Uh, this is the output of the descriptive statistics. So हमने कितने वेरिएबल कंसीडर किए थे? Here we considered 3 variables: health score, personality score, and age of a person. All are 25 because we have 25 respondents. तो हमने 25 respondent यहाँ पर consider किए. Is there any missing value? No missing value is there. So these are the statistics, total and 25, minimum value, maximum value, sum, mean, standard deviation, skewness, and kurtosis. All the statistical characteristics are there in which we are interested of these 3 variables. तो हमें ये descriptive statistics easily हम find out कर सकते हैं जिन variables में हम interested हैं. So this is the basic concept how to get the statistics. What are the commands? Just again we see it. Go to descriptive, go to analyze, go to descriptive, and again go to descriptive and click on it, and put the variables. Click on the variables in which you are interested in the variable window. Go to option, click the interested characteristics, mean, sum, maximum value, minimum value, skewness, kurtosis in which you are interested, and click on OK. You get the output of the following variables. तो इस तरह से हमें ये descriptive statistics find out हो सकती है. Now next option is, suppose we are interested in the descriptive statistics according to the category.
जैसे कैटेगरी मीन्स सपोज आपको पता करना है कि डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जेंडर वाइज क्या ओपिनियन है, एज ऑफ अ पर्सन या हेल्थ स्कोर का जेंडर वाइज क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, या कोई भी कैटेगरी जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं उसको कैटेगराइज अलग अलग जेंडर वाइज, मंथली इनकम वाइज क्या रिस्पॉन्स है, क्या उनके हेल्थ स्कोर में मंथली इनकम के अकॉर्डिंग कोई हेल्थ स्कोर में फर्क आ रहा है। इस चीजों को अगर पता करना है अगर हमें कैटेगरी वाइज, तब हम क्या करेंगे, बिकॉज इन 25 रिस्पॉन्डेंट्स मेल एंड फीमेल अलग अलग है हमारे यहाँ। मेल जो है 14 रिस्पॉन्डेंट हैं, 11 फीमेल्स हैं, तो उनका सपोज आपके ऑब्जेक्टिव में आपको जेंडर वाइज भी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फाइंड आउट करना है, तब हम क्या करेंगे। नाउ गो टू द SPSS फाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन data, click on data, go to split file. What we do, first go to data, click on split file. और आपको मैंने क्या कहा कि आप इंटरेस्टेड हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू जेंडर, जेंडर के अकॉर्डिंग क्या डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आ रही है हमारी, उसके बारे में आपको पता करना है। तो सिंपली क्लिक करिए जेंडर, इस पे आप ये यू गेट 3 ऑप्शंस, एनालाइज ऑल केसेस, डू नॉट क्रिएट ग्रुप यानी विदाउट स्प्लिट, कंपेयर ग्रुप्स, ऑर्गेनाइज आउटपुट बाय ग्रुप्स। तो आप क्लिक करिए ऑर्गेनाइज आउटपुट बाय ग्रुप्स, यानी ग्रुप्स कौन से हैं, आप ग्रुप्स को जेंडर ऑफ अ पर्सन आपके ग्रुप हो गए, यानी जेंडर वाइज आप इंटरेस्टेड हैं कि आपको जो आउटपुट मिले वो जेंडर वाइज मिले। सो क्लिक ऑन इट, क्लिक ऑन ओके। अब आपको देखिए आउटपुट फाइल में आपको क्या शो हो रहा है, स्प्लिट फाइल सेपरेट बाय जेंडर। एवरीवन गॉट इट, स्प्लिट फाइल सेपरेट बाय जेंडर। देखिए SPSS आउटपुट में सभी को शो हो रहा है, ये आउटपुट शो हो रहा है, सेपरेट स्प्लिट फाइल सेपरेट बाय जेंडर। Yes, sir. Okay, now go to Yes. analyze, go to okay, thank you, go to analyze, go to descriptive statistics, and again go to descriptive statistics because you are interested according to gender. Go to analyze, go to descriptive, and again go to descriptive. You are interested in all 3 variables according to gender, यानी health score gender wise क्या है, मेल फीमेल का, personality score and age of a person. You are interested in all these 3 variables according to gender. And options, mean, sum, standard deviation, minimum value, standard error, skewness, kurtosis. Click on it, click on OK. Now see this file is split according to gender. देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, from the bottom of this table, red color, from the bottom of this table, gender of a person male, यानी जो मेल है हेल्थ स्कोर, टोटल 14 मेल्स हैं हमारे रिस्पोंडेंट में। इन 25 14 रिस्पोंडेंट्स आर मेल कैटेगरी एंड 11 में बिलोंग्स टू फीमेल कैटेगरी। तो हेल्थ स्कोर 14 रिस्पोंडेंट का डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आ गया, पर्सनालिटी स्कोर एंड एज ऑफ अ पर्सन। एंड नेक्स्ट वन इज योर फीमेल जेंडर। तो जेंडर फीमेल के अकॉर्डिंग आपका जो आउटपुट आया है 11 रिस्पोंडेंट्स आर फीमेल, सो देयर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आर एज फॉलोज। तो ये हम अकॉर्डिंग टू जेंडर भी पता कर सकते हैं। आपको पता करना है कि व्हाट इज द हेल्थ स्कोर अकॉर्डिंग टू, सपोज यू आर इंटरेस्टेड इन मंथली इनकम, आपको पता करना है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ स्कोर अकॉर्डिंग टू मंथली इनकम, यानी जो मंथली इनकम हमारे जो रिस्पोंडेंट हैं उनकी मंथली इनकम का हेल्थ स्कोर पर क्या इम्पैक्ट है। तो इसके बारे में भी अगर आपको पता करना है तो सबसे पहले क्या करना है, आपने क्या किया था, अभी आपने मेल एंड फीमेल को अकॉर्डिंग टू जेंडर सेपरेट कर दी थी फाइल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बिफोर गोइंग टू अनदर एनालिसिस, फर्स्ट यू हैव टू रीसेट योर डेटा। तो जो आपने स्प्लिट कर रखा था फिर से आपको रीसेट करना होगा। गो टू डेटा, अगेन गो टू डेटा, go to split file, and here see organize output by groups, reset this value, reset it, okay. Now you get, see this command split file off, यानी जो आपकी जो फाइल है अब वो ओरिजिनल फॉर्म में आ गई, स्प्लिट फाइल ऑफ। कोई भी फर्दर एनालिसिस करने के लिए जब आपने एक बार स्प्लिट कर दी फाइल और आपका जो ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल हो गया, नाउ आप उसको स्प्लिट फाइल ऑफ कर देंगे, यानी
फिर से रीसेट कर देंगे। और स्प्लिट फाइल ऑफ करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि डेटा आपके ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाएगा। तो स्प्लिट फाइल ऑफ, अब आप फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं कोई दूसरी। तो नाउ कम टू द सेकेंड ऑप्शन। Now come to the, again you are interested the health score according to monthly income. How many groups are there in monthly income? Monthly income में कितने ग्रुप है हमारे पास? There are 4 groups are there. See, 0 below 2000, 1 2 3, there are 4 different groups are there. Now again, what we do, we are interested in monthly income, health score according to monthly income. So first we should follow the, first we have to split that file according to मंथली इनकम। मंथली इनकम के अकॉर्डिंग हमें हेल्थ स्कोर क्या होगी ये पता करना है। तो सबसे पहले हमने स्प्लिट फाइल कर ली अकॉर्डिंग टू मंथली इनकम। नाउ सी दिस वन, स्प्लिट फाइल सेपरेट बाय मंथली इनकम। मंथली इनकम के अकॉर्डिंग हमारी फाइल स्प्लिट हो गई। नाउ गो टू एनालाइज, गो टू डिस्क्रिप्टिव, अगेन गो टू डिस्क्रिप्टिव। यू आर इंटरेस्टेड इन ओनली हेल्थ स्कोर। हेल्थ स्कोर में आप इंटरेस्टेड है सपोज कीजिए, क्लिक कर दिया ओके। अब देखिए हेल्थ स्कोर ऐसे आपके 25 रिस्पोंडेंट में बेलो जो 2000 से कम रुपीज कमा रहे हैं, दिस इज द हाइपोथेटिकल डेटा, बेलो 2000 रुपीज से कम कमा रहे हैं वो 3 रिस्पोंडेंट हैं। उनका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ये है। 2000 से 4000 जो कमा रहे हैं उनका 6 ऐसे पर्सन्स हैं जिनका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आर गिवन। सिमिलरली 4000 to 8000 and 8000 to 10,000. So different according to monthly income, their descriptive of statistics are there according to different monthly income group. So we are going for, before going forward for the further analysis, first we have to split of the data set. Go to data, go to split and reset this value as okay. Now your file is split off, means you have of the split of the command and you get the data in its original format. Now come to the next point, computing a new variable then performing a descriptive statistics. Now you are interested in making other variable by adding 2 variables. आपको क्या करना है, जैसे सपोज आपको ट्रांसफॉर्म करना है वेरिएबल्स, तो ट्रांसफॉर्म वेरिएबल कोई ऐसा न्यू वेरिएबल बनाना है किसी भी वेरिएबल को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके। तो आप किस तरह बनाएंगे कोई नया वेरिएबल, कोई 2 वेरिएबल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो सिंपली आप यहाँ पर गो टू ट्रांसफॉर्म, गो टू कंप्यूट एंड नेम द new variable as a target variable, put in the section of target variable and add the numeric expression. Okay, now SPSS file पे हम आएंगे, command is transform, go to compute. Now click on SPSS file, go to transform, go to compute variable, again go to transform, go to compute variables. New variables, suppose आपने नाम दे दिया न्यू वेरिएबल nv, सपोज nv इज द न्यू वेरिएबल, आपने एक नाम दे दिया हाइपोथेटिकल नेम। आपने कहा कि इस न्यू वेरिएबल को कौन से 2 वेरिएबल ऐड करने, सपोज यू आर इंटरेस्टेड इन हेल्थ स्कोर, हेल्थ स्कोर और पर्सनालिटी स्कोर को ऐड करके आपको न्यू वेरिएबल बनाना है। हेल्थ स्कोर को हम इधर ले गए न्यूमेरिक सेक्शन में, ऐड करके बनाना है हमें, प्लस पर्सनालिटी स्कोर, इन दोनों health score and personality score, add the health score and personality score and make the new variable. आपने क्या किया, इसे ऐड कर दिया और इन 2 वेरिएबल को ऐड करके एक न्यू वेरिएबल जनरेट करना है। क्लिक ऑन ओके। अब देखिए न्यू वेरिएबल जनरेट हो गया। नाउ कम टू द मेन ओरिजिनल फाइल ऑफ SPSS। देखिए नया वेरिएबल ऐड हो गया, न्यू वेरिएबल आप यहां पर नाम दे सकते हैं इन द सेक्शन। देखिए नया वेरिएबल ऐड हो गया। न्यू वेरिएबल किसको ऐड किया था आपने, हेल्थ स्कोर और पर्सनालिटी स्कोर। बाय एडिंग हेल्थ स्कोर एंड पर्सनालिटी स्कोर यू गेट द न्यू वेरिएबल।
तो 22 plus 54 plus 15 is equal to 37.54. So you can get the new variable by using any mathematical operation. You can use the divide or concept, you can use the multiplication, addition, subtraction, whatever be your mathematical operation, you can transform, you can make the new variable by using the command transform and then compute. तो इस तरह से हमें नया variable generate हो जाएगा. Now, hypothesis testing, most important part of your analysis. So there are two types of hypothesis, null hypothesis and alternative hypothesis. What is alternative hypothesis? The hypothesis of research. Hypothesis of research is known as alternative hypothesis. यानी बेसिकली जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है, जो आपकी हाइपोथेसिस होती है रिसर्च की, वो आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है. ये याद रखिएगा हमेशा, हाइपोथेसिस ऑफ रिसर्च भी कहते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को. तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपकी हो गई अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और हाइपोथेसिस ऑफ रिसर्च आपका ऑब्जेक्टिव, और दूसरी हो गई नल हाइपोथेसिस. देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, और इसको नल हाइपोथेसिस कहते हैं. हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड. टेस्टेड क्यों कह रहे हैं? जबकि हमें तो आपका ये क्वेश्चन अराइज होता है कि इसकी डेफिनेशन है हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड, जबकि हम अल्टरनेट है हमारा, हम टेस्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव को, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को. तो हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस को हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड इसलिए कहते हैं क्योंकि हम नल हाइपोथेसिस को ही एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं. क्यों? रीजन क्या होता है? क्योंकि अगर हम किसी को पहले से ही ये मान करके चलेंगे कि someone is better, someone is superior, someone is inferior, that means we are moving, there is a biasness in the output. So हम क्या लेकर के चलते हैं? There is no significant difference, there is no relationship between these two variables or these three variables. तो ये हमारा जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है, ये हाइपोथेसिस ऑफ रिसर्च होता है. और नल हाइपोथेसिस होता है देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, देयर इज नो रिलेशनशिप और देयर इज नो इफेक्ट बिटवीन वेरिएबल्स. तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम हाइपोथेसिस ऑफ रिसर्च भी कहते हैं. और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. और जनरली क्या होता है, सर्वे जब आप कंडक्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव ही सबसे पहले फ्रेम करना चाहिए. जब आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा प्रॉपर, तभी आपके क्वेश्चनायर्स में जो minimum number of questionnaires, if your objective is clear, then you will which is directly proportional to your number of questions. प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होता और आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके इंक्रीज हो जाते हैं, आप ऐसे भी रिलेवेंट क्वेश्चन पुट अप कर देते हैं जो उसमें जरूरत नहीं है आपके ऑब्जेक्टिव में, और आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज होते हैं, जिससे रिस्पोंडेंट पर भी असर पड़ता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि बहुत लेंथी क्वेश्चन आयर है. तो ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, आप उन्हीं वेरिएबल्स को कंसीडर कीजिए जो आपके लिए रेलिवेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग है. तो बेटर होता है कि ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर रहे. ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तभी ऑब्जेक्टिव. देखिए, एक और भी प्रॉब्लम जनरली फेस करते हैं रिसर्च स्कॉलर्स, आते हैं जब एनालिसिस के लिए, तो जब उनसे पूछा जाता है आपकी ऑब्जेक्टिव क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आप टेस्ट लगाते हैं. जैसे आपने कहा कि हमें पता करना है सिग्निफिकेंट डिफरेंस दो ग्रुप्स में पता करना है, तो भाई सिग्निफिकेंट डिफरेंस अगर आप पूछें, अगर आप रिसर्च स्कॉलर से अगर वो नहीं बता पाएंगे तो आप नहीं इजली आप उनको बता पाएंगे कि कौन सी, जिस तरह दवा है, हर एक चीज के लिए ड्रग्स होती हैं, डॉक्टर्स प्रीफर करते हैं, उसी तरह हर एक प्रॉब्लम के लिए टेक्निक्स हैं, डिफरेंट टेक्निक्स आर देयर फॉर डिफरेंट मेथड, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स. तो अगर एसोसिएशन पता करना है तो काई स्क्वायर के थ्रू, कोरिलेशन, अगर बॉन्डिंग स्ट्रेंथ डायरेक्शन आपस में रिलेशनशिप पता करना है तो कोरिलेशन है. तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी डेटा एनालिसिस के लिए. नाउ फर्स्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट इज टी टेस्ट. टी टेस्ट इज अ पैरामेट्रिक टेस्ट बिकॉज नॉर्मेलिटी assumption is very important in टी टेस्ट. टी टेस्ट क्या है? टी टेस्ट फॉर सिंगल मीन. टी टेस्ट फॉर सिंगल मीन सबसे पहला है हमारा, एवरेज हेल्थ स्कोर ऑफ अ नॉर्मल पर्सन इज सपोज टू बी 55. सपोज आई हैव कंसिडर्ड एन एग्जांपल and this example is based on our questionnaire, and we can say that average health score of a normal person is supposed to be 55. हमारा हेल्थ स्कोर नॉर्मल पर्सन का 55 है.
health score of 12% from a community whose living condition are suspected of causing poor health scores are recorded in health data file. Do the data justify the suspicions regarding the health score of the community? यानी कह रहे हैं कि हेल्थ स्कोर जो है नॉर्मल पर्सन का 55 है, लेकिन जब हमने सैंपल्स कलेक्ट किए तो हमने देखा कि जो पुअर लिविंग कंडीशंस में रह रहे हैं, बहुत लोगों के हेल्थ स्कोर अच्छे नहीं है, तो इसलिए हो सकता है कि डेटा हमारा प्रॉब्लम क्रिएटिंग है 55 नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, क्या ये आप जस्टिफाई कर पा रहे हैं? डू द डेटा जस्टिफाई द सस्पिशन रिगार्डिंग द हेल्थ स्कोर ऑफ द कम्युनिटी? ये जो क्लेम कर रहे हैं कि 55 है एवरेज हेल्थ स्कोर ऑफ अ नॉर्मल पर्सन, इज दैट ट्रू और नॉट? तो सबसे पहले हेल्थ हाइपोथेसिस क्या हो गई? एच नॉट नल हाइपोथेसिस, एवरेज हेल्थ स्कोर ऑफ अ नॉर्मल पर्सन इज 55. Average health score of a normal person is 55. And alternative is average health score of a normal person is less than 55. लेस देन 55 यानी 55 से कम है। आपने क्लेम किया कि नहीं 55 से कम लग रही है, 55 नहीं है एवरेज हेल्थ स्कोर ऑफ अ नॉर्मल पर्सन। तो अब आपको you have to be verified according to data is given according to your data. What will be your the average health score of a normal person? If it is 55 or less than 55, you have to be verified from the given डेटा। तो अब कैसे करना है? सबसे पहले तो आपको क्या करना है, डेटा की नॉर्मेलिटी चेक करना है। नॉर्मेलिटी डेटा की चेक करने के लिए, क्योंकि योर वेरिएबल इज हेल्थ स्कोर, आपका वेरिएबल हेल्थ स्कोर है, तो हेल्थ स्कोर को सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि हेल्थ स्कोर हमारा नॉर्मल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। और ये हम ऑलरेडी कल देख चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी वेरीफाइड दैट आवर हेल्थ स्कोर फॉलो द नॉर्मेलिटी अजम्पशन। आज मैं फिर एक बार चेक कर लेता हूँ, दिखा देता हूँ किस तरह हम चेक करेंगे हेल्थ स्कोर हमारा नॉर्मेलिटी फॉलो कर रहा है या नहीं। गो टू एनालाइज, go to descriptive, go to explore. To check the normality of the data, go to analyze, go to descriptive, go to explore, click on it. You are interested in health score, move into the dependent list. Now you are interested in plots, so unclick the stem and leaf and click the normality plot with test. आपको क्या चाहिए? Normality plot with test. Continue कर दीजिए। Okay, now you get the this one. See, normal test of the normality health score. KS test and Shapiro-Wilks test. Both tests are useful to check the normality assumption of the data set. And KS test p value is 0.200 and 0.139. कोई भी आप कोई भी टेस्ट आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए दोनों टेस्ट में आपका p वैल्यू ग्रेटर आ रहा है। If p value is greater than 0.05, then we accept our null hypothesis. And what is our hypothesis? कल हमने बताया था, इस केस में हमारी hypothesis होगी data follow the normality assumption, and alternative होगा data does not follow the normality assumption. तो इस केस में हमारी null hypothesis accept हो रही है because p value is greater than 0.05. So in this case we can easily say that our health score follow the normality assumption, and this data is we can use this data for the parametric test. तो हेल्थ स्कोर के लिए हम पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं हेल्थ स्कोर को। नाउ गो टू एनालाइज, गो टू कंपेयर मीन, गो टू वन सैंपल टी टेस्ट। हमारा वन सैंपल टी टेस्ट क्यों है? क्योंकि हमें क्या पता करना है कि हमारा जो एवरेज हेल्थ स्कोर है किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे पूछ रहा है, यानी पार्टिकुलर वैल्यू को वेरीफाई करना है हमें। तो जो भी हमारा जो पॉपुलेशन जो कह रही है कि एवरेज हेल्थ स्कोर ऑफ 55, लेकिन जब हमने डेटा कलेक्ट किया देन डेटा सेट दैट एंड द सर्वेयर student research scholar said that no I am not satisfied according to sample that age average health score of a normal person is not 55, less than 55. So we need to verify it that 55 or not. So we use the concept one sample t test. Go to analyze, go to compare means go to one sample t test. अब हमें क्या करना है? कौन सा वेरिएबल हमें चेक करना है? हेल्थ स्कोर को। क्लिक ऑन हेल्थ स्कोर। व्हाट इज आवर टेस्टिंग वैल्यू? टेस्टिंग वैल्यू हमारा कितना है? 55 हमारा टेस्टिंग वैल्यू है। क्यों?
सी द क्वेश्चन, एवरेज हेल्थ स्कोर ऑफ अ नॉर्मल पर्सन इज 55 और हमारी हाइपोथेसिस क्या है, एवरेज हेल्थ स्कोर ऑफ अ नॉर्मल पर्सन 55 एंड एवरेज हेल्थ स्कोर ऑफ अ नॉर्मल पर्सन इज लेस देन 55। 55 पर ही हमें चेक करना है, तो हमारी टेस्ट वैल्यू हो गई 55। सी 55 is our testing value. Go to option 95 confidence interval, that means 5% level of significance, no need to change it, continue. Okay, see this one, देखिए हेल्थ स्कोर टोटल 25 वैल्यूज आर देयर, मीन है 47, स्टैंडर्ड डेविएशन 15.78, स्टैंडर्ड एरर इज गिवन। नाउ वन सैंपल टी टेस्ट, सी हेल्थ स्कोर की जो वैल्यू आ रही है, पी वैल्यू आ रही है 0.021, 0.021, दिस इज आर 0.021, दिस वैल्यू इज पी वैल्यू, और पी वैल्यू हमारी आ रही है 0.021 मींस विच इज लेस देन 0.05, है ना, 0.05 से लेस देन हो गई, 0.05 से कम है, बट दिस इज टू टेल्ड। टू टेल्ड क्यों, कौन सी हाइपोथेसिस टू टेल्ड होती है, देखिए हम इसको एक रफ आइडिया आपको दे देते हैं। ये दिस हाइपोथेसिस इज वन टेल्ड, why it is called one tail, when the alternative hypothesis is less than or greater than, we have one tailed hypothesis, यानी वन टेल्ड होगी हमारी, अगर लेस देन होता है ग्रेटर देन होती है, चाहे लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, तो हम इसको कहेंगे वन टेल्ड हाइपोथेसिस। इफ एवरेज हेल्थ स्कोर ऑफ अ नॉर्मल पर्सन नॉट इक्वल टू 55, नॉट अ 55, इस तरह का अगर स्टेटमेंट है कि 55 नहीं है, और अब 55 नहीं है, आपको ये नहीं पता है कि लेस देन और ग्रेटर देन, बस आप क्लेम कर रहे हैं कि 55 नहीं है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, तो नॉट इक्वल टू के केस में हम कंसीडर करते हैं टू टेल्ड। तो बेसिकली बाय डिफॉल्ट ये टू टेल्ड देता है, तो टू टेल्ड को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, जो भी पी वैल्यू है हमारी उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें वन टेल्ड मिल जाएगी। तो देखिए 0.021 है, इसे फर्दर अगर आप डिवाइड करेंगे 2 से तो ये और छोटी हो जाएगी, तो ये अभी रिजेक्ट हो रही है, पी वैल्यू इज लेस देन 0.05। अब इसको आप वन टेल्ड है हमारी, लेस देन हमें पता करना है, तो पी वैल्यू को अगर हम फिर से डिवाइड कर दें 2 से तो ये और स्मॉल हो जाएगी, तो इस केस में भी हमारी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है, दैट मीन्स विच स्टेटमेंट वी रिजेक्टेड, एवरेज हेल्थ स्कोर ऑफ अ नॉर्मल पर्सन इज 55, हम इस स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर देते हैं और किसको एक्सेप्ट करेंगे, एवरेज हेल्थ स्कोर ऑफ अ नॉर्मल पर्सन इज लेस देन 55, इज लेस देन 55, यानी हम इस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं, एवरेज हेल्थ स्कोर नॉर्मल पर्सन का 55 से कम है, जो क्लेम कर रहे थे कि 55 है वो नहीं है। हो सकता है आपको लगे कि नहीं नहीं यही आना चाहिए, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, यानी जो भी आपने डेटा लिया है उसके अकॉर्डिंग ये आ रहा है। हो सकता है रिजल्ट में चेंज इफ यू इंक्रीज द साइज ऑफ द सैंपल, 25 से अगर आप सैंपल साइज इंक्रीज कर लें, हो सकता है रिजल्ट चेंज हो जाए। तो जैसे आपने ये देखा है ना, जुडिशरी में आपको लगता है नहीं नहीं ये गिल्टी है, आपको देखकर लगता है कि ये गिल्टी है, लेकिन क्या कहते हैं, जजमेंट क्या आता है, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, एविडेंस के बेसिस पर। हो सकता है आपको लग रहा हो कि वो गिल्टी है, लेकिन एविडेंस नहीं दे पाते सफिशिएंट, तो हो सकता वो छूट जाते हैं, वो इनोसेंट हो जाते हैं, लेकिन वही अगर एविडेंस आप प्रोवाइड कर देते हैं फिर से वो गिल्टी हो जाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेटा यू कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट योर हाइपोथेसिस। So this is the concept of one sample t-test. Now the second test is independent sample t-test. Second application of t-test, independent sample t-test, when we want to know the significant difference between two groups. अगर आपको significant difference between two groups अगर आपको पता करना है कि दो ग्रुप में क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस है आपस में किसी पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, ये आपको पता करना है, तब हम यूज करेंगे कॉन्सेप्ट इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट का। जैसे आपको पता करना है, इज देयर एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन हेल्थ स्कोर ऑफ अ मेल एंड मीन हेल्थ स्कोर ऑफ अ फीमेल, यानी आपके पास जो ग्रुप गिवन है जेंडर, यानी जो हेल्थ स्कोर है, क्या वो मेल और फीमेल के मीन हेल्थ स्कोर का सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं उनमें आपस में, इसका आपको पता करना है। और हमारे पास कितने ग्रुप हो गए, दो डिफरेंट ग्रुप हो गए, मेल के और फीमेल के। तो
null hypothesis हो गई, there is no significant difference between the mean health score of male and female. Alternative हो गई, there is a significant difference between mean health score of a male and female. आप क्लेम कर रहे हैं कि नहीं है, there is a significant difference. और अल्टरनेटिव के नल हाइपोथेसिस क्या बनी, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल विद रिस्पेक्ट टू एवरेज हेल्थ स्कोर. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू चेक द नॉर्मेलिटी ऑफ योर डेटा सेट. तो जो कि हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, नॉर्मेलिटी अपने डेटा सेट की हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं. अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है. कंपेयर मीन्स using the command compare means independent sample t test and move health score into variable test variable window, define groups 1 2. क्यों, क्योंकि मेल को 1 डिफाइन किया है और फीमेल को 2, एंड देन क्लिक ओके. नाउ कम टू द एसपीएसएस फाइल. एसपीएसएस फाइल में हम आएंगे. जितने भी पैरामेट्रिक, यू शुड रिमेंबर दैट when you perform parametric test, before performing any parametric test, you must ensure that your data must follow the normality assumption. Whatever be your t-test, say t-test for single mean, t-test pair t-test, independent sample t-test, one-way ANOVA, two-way ANOVA, whatever be your parametric test, आपको चेक करना है कि डेटा आपका नॉर्मेलिटी फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है. अगर कर रहा है तभी आप पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई करिए, अदरवाइज वी शुड मूव टुवर्ड्स द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. तो now we are going to perform the independent sample t test. Analyze, go to analyze, go to compare means, go to independent sample t test. Again, go to analyze, go to compare mean, go to independent sample t test. Now what is your testing variable? Health score. Health score is your testing variable. What is your grouping variable? You are interested in gender of a person, because see, once you click on gender of a person in a grouping variable, you will see that question mark means you will define the groups. ग्रुप कौन कौन से हैं जेंडर में, 1 फॉर मेल एंड 2 फॉर फीमेल. जो आपने पुट किया है उसी को आप पुट कर दीजिए, जो आपने कोड किया है. कंटिन्यू. ओके, नाउ गो टू ऑप्शंस. No need to change anything because by default it consider 5% level of significance, so 95% confidence interval is there. Click on continue, click on okay. देखिए अब आपका डेटा आ गया. This one is the group statistics, brief summary of your data set, male and female. 14 male are there and 11 female are there. So 47, 46 and their standard deviation, standard error is there. Now 0.219. See, health score. You should ensure that one more important assumption, that in independent sample t-test, your variances must be equal and unknown. See, your variances, there are two conditions are there. Equal variances assumed means equal variances. There is another assumption after normality in independent sample t-test, your variance must be equal and unknown. तो इक्वल वेरिएंस में अगर ये p वैल्यू देखिए, लेवेनेट टेस्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस, इसको भी हमें चेक करना पड़ेगा. लेवेनेट टेस्ट फॉर द इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस, और इसकी हमें p वैल्यू हमने देखी विच इज ग्रेटर देन 0.05. अगर ये 0.05 से ग्रेटर आ रही है तो हम कहेंगे इट इज नाउ वी आर एबल टू प्रोसीड फॉर द टी टेस्ट. अगर नहीं आती है तो हम इसमें मूव नहीं कर सकते, हम टी टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते. देखिए लेवेनेट टेस्ट में हमें 0.219 आ रही है विच इज ग्रेटर देन 0.05. नाउ वी आर एबल टू मूव फर्दर, वी आर एबल टू प्रोसीड फॉर इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट. अब देखिए यहाँ पर हमारी जो p वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट फॉर द इक्वालिटी ऑफ मीन्स. देखिए इस केस में हमारी p वैल्यू आ रही है 0.944. this is two-tailed and this one gives you 0.944. 0.944 means p value is greater than 0.05, which is accepted. If p value is greater than 0.05, that means our null hypothesis will be accepted. हमारी hypothesis इस केस में accept हो रही है.
नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है। टू टेल्ड क्यों है? देखिए टू टेल्ड की आ रही है तो हमें हाइपोथेसिस देखनी होगी। देखिए हाइपोथेसिस, वी हैव टू चेक देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। हमें क्या चेक करना है कि जस्ट क्लेम आप कर रहे हैं, जो जो क्वेश्चन आयर जो स्टूडेंट है वो क्लेम कर रहा है, रिसर्चर क्लेम कर रहा है, इन्वेस्टिगेटर, कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट, मतलब बस वो कह रहा है कि फर्क है, कौन कम है, विच वन इज ग्रेटर विच वन इज लेसर, doesn't matter, he just claimed that there is a significant difference, तो not equal to का केस है, that means two tailed है, so that's why we just consider the this value 0.944, and in this case p value is greater than 0.05, so we can say that there is a there is no significant difference, यानी नल हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि p वैल्यू ग्रेटर है 0.05 से, और इस स्टेटमेंट को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, you accept this statement, there is no significant difference between male and female group with respect to average health score, means मेल और फीमेल के हेल्थ स्कोर में कोई फर्क नहीं है, according to given data both are equal, there is no significant difference. So this is the basic concept of independent sample t-test. Now come to the next one, pair t-test. Pair t-test is used when samples are dependent. Sample dependent होंगे. What is the difference between pair t-test and independent sample t-test? So this is the basic difference. In independent sample t-test, samples are independent. We have different two groups. And in pair t-test, samples are dependent. When we are going to check that what is the impact of pre and post, before and after, then we use the concept of pair t-test. Suppose आपको पता करना है कि what is the if you want to know the efficiency of any particular drug, efficiency पता करना है, जैसे कोविड पेशेंट्स थे, सपोज करिए किसी हॉस्पिटल में कोविड पेशेंट्स एडमिट थे 100 इन द लास्ट ईयर्स, और उनकी हेल्थ स्कोर हमने नोट डाउन कर ली, 100 पेशेंट्स थे, 100 पेशेंट्स आर देयर इन अ हॉस्पिटल हु हैव they have covid, so they now after that कोविशील्ड इज देयर, सपोज कोविशील्ड किसी कंपनी ने बनाई या कोवैक्सीन किसी कंपनी ने बनाई, और उसका देखना है कि कितना इफेक्टिव है ये कोवैक्सीन या कोविशील्ड, तो आपने क्या किया, अब उन्हीं 100 सैंपल्स पर आपने कोविशील्ड या कोवैक्सीन उन्हीं सैंपल्स पर आपने टेस्ट की, तो 100 सैंपल्स यानी प्री, एक ग्रुप था कौन सा, प्री टेस्ट, यानी जो 100 पेशेंट्स थे, और दूसरा ग्रुप था आपका जिन जब आपने उनको वो जो वैक्सीन थी कोविशील्ड या कोवैक्सीन आपने उनको दी, तो सेम पेशेंट्स रहे, यानी सैंपल्स आर डिपेंडेंट, जो 100 सैंपल्स थे पहले पेशेंट्स थे उन्हीं पर ही आपने टेस्ट किया उस कोविशील्ड को, उस वैक्सीन को, तो इस तरह की अगर कंडीशन है तब हम यूज करते हैं कॉन्सेप्ट पेयर टी टेस्ट का. सपोज नाउ कंसीडर द एग्जांपल, please refer health score data where it seems that poor living condition is one of the cause for the poor health score. Better living conditions are provided to people of this locality after a month, again their health scores are recorded. Now we want to test there is any improvement in the health score after providing the better living condition. इसमें हमें क्या करना है, according to our questionnaire we have 25 respondents, their health scores are noted down and we can see this. हम कह रहे हैं कि जब हमने उन्हें बेटर लिविंग कंडीशन प्रोवाइड करी तो उनके हेल्थ स्कोर में इंप्रूवमेंट हुआ, ये हमारा क्लेम है. तो हाइपोथेसिस क्या है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन हेल्थ स्कोर बिफोर एंड आफ्टर प्रोवाइडिंग द बेटर लिविंग कंडीशन, यानी पहले और बाद में अगर हम बेटर लिविंग कंडीशन प्रोवाइड करते हैं अगर बाद में, तो कोई फर्क नहीं आ रहा है. लेकिन अल्टरनेटिव क्या है, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, मींस investigator claim that no, if we provide better living condition there is an impact in the health score change, may be changed, this investigator claims. तो अब हमें क्या करना है, we use the pair t test. So before applying pair t test we use the, first we have to check the
normality of the data set. So we already checked that our health score follows the normality assumption. Now come to the concept of go to compare means, then go to paired sample t-test, move health score in one variable, other health score one as a variable two. Now come to the SPSS file, go to analyze, go to compare mean. First we have to go to analyze, go to compare mean, go to paired sample t-test, then we are interested in हेल्थ स्कोर. हेल्थ स्कोर क्या है? ये प्री टेस्ट है, यानी जब आपने बेटर लिविंग कंडीशन प्रोवाइड करने से पहले नोट किया था उनका हेल्थ स्कोर, तो ये हेल्थ स्कोर था. और दूसरा क्या था आपका? सेकंड वन इज न्यू हेल्थ स्कोर after providing the better living condition. So we have two different variables are there. Click on options. By default it can consider 5%, no need to change it. Continue, click on OK. See this one. This is the brief summary of health score, new health score. This health score is the pre-score of before providing the better living condition. New health score after providing the better living condition. सैंपल्स आर डिपेंडेंट, क्योंकि जो सैंपल्स आपने पहले लिए थे उन्हीं को ही आपने बेटर लिविंग कंडीशन प्रोवाइड करी थी. नाउ दिस इज योर मेन टेबल पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट. तो इसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि जो हमारी पी वैल्यू आ रही है टू टेल्ड इज 0.028. 0.028 मीन्स दिस वैल्यू इज लेस देन 0.05. This value is less than 0.05. So our decision rule said that if p value is less than 0.05, that means alpha, if p value is less than alpha, we reject our null hypothesis. इसका मतलब ये है कि हमारे इस केस में हमारी p वैल्यू कम आ रही है, किससे? लेस देन आ रही है 0.05 से. इन दिस केस वी रिजेक्ट आवर नल हाइपोथेसिस, यानी हमने इस स्टेटमेंट को, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया और किसको एक्सेप्ट कर लिया? वी एक्सेप्ट this one. Why we accept this one? Because we reject our null hypothesis, and we can say that, we conclude that yes, there is an impact if we provide better living condition, there is a change in the health score. यानी health score change हो रहा है, और अगर आप उनको better living condition provide कर रहे हैं तो उनका health score change हो रहा है. Now the next technique is correlation analysis. Correlation measures how variables are related with each other, and it quantify the strength and direction between two variables. Why they said that strength and direction? Because correlation just gives you the linear relationship between variables, and it talks about the strength and direction. Strength means what is the impact of that value, because correlation lie between -1 to +1. -1 से +1 के बीच में lie करती है. तो कितनी वैल्यू है? 0.6, 0.8, 0.7, 0.5. This talks about the strength. And what about the direction? Direction quantify the, it is negative or positive. Means there are generally we have positive correlation and negative correlation. Positive correlation means when two variables moves in the same direction, means one increases, other increases. What is the example of positive correlation? Positive correlation का क्या example है? Positive correlation का example होगा हमारा age and income and expenditure. इनकम एंड एक्सपेंडिचर. इनकम और एक्सपेंडिचर में पॉजिटिव कोरिलेशन होगा. क्यों? क्योंकि इनकम इंक्रीज होती है तो एक्सपेंडिचर भी आपका इंक्रीज होता है. सिमिलरली अगर हम बात करें मींस हाइट एंड वेट. हाइट एंड वेट इज द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन. कैन एनीवन टेल मी दैट व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन हाइट एंड वेट? हाइट और वेट में कैसा कोरिलेशन होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव? एनीवन? पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव कोरिलेशन. व्हाई इट इज पॉजिटिव? बिकॉज हाइट के साथ साथ आपकी वेट भी इंक्रीज होता है. जैसे जैसे आप हाइट
इंक्रीज होती है वेट भी उसी डायरेक्शन में इंक्रीज होगा, या हाइट डिक्रीज, हाइट कम होगी तो वेट, यानी सिमिलर डायरेक्शन में दोनों वेरिएबल्स अगर मूव करते हैं तो हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। निगेटिव कोरिलेशन का एग्जांपल क्या है, एक वेरिएबल इंक्रीज करता है तो दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में डिक्रीज करता है, एंड वाइस वर्सा, if one increases other decreases, other one decreases other increases। any example, age and health score, जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है हेल्थ स्कोर आपका डाउन होता है ना। ये एग्जांपल है आपका निगेटिव कोरिलेशन का। तो निगेटिव कोरिलेशन एंड पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट कोरिलेशन क्या होता है, अगर -1 और +1 वैल्यू डायरेक्टली मिल जाती है, तो जनरली हमें -1 और +1 नहीं मिलती है, लेकिन कभी कभी डेटा में हमें मिल जाती है। लेकिन परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट निगेटिव, इफ यू गेट +1 दैट मीन्स परफेक्ट पॉजिटिव, इफ यू गेट -1 परफेक्ट निगेटिव। तो डिफिकल्ट टू get this value, but yes, if it is close to +1 we can say that 0.7 0.8 strong positive correlation. If it is close to minus 0.7 -0.8 -0.9 we can say that a strong negative correlation. So this is the concept of correlation analysis. So Spearman Kendall correlation both are used for non-parametric cases. Spearman correlation used for the ranking of the data, यानी अगर आपको दो जजेस हैं हमारे और उन्होंने रैंक कर रखा है किसी पार्टिकुलर 10 कैंडिडेट्स की रैंकिंग कर रखी है 2 जजेस की, और उसमें हमें कोरिलेशन फाइंड आउट करना है, देन वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेयरमैन कोरिलेशन. Now we are going to perform the simple correlation coefficient. Simple correlation coefficient, there is a graph scatter plot which is used to determine that there is a relationship between age and health score. According to our data set, first we have to find that scatter plot. Scatter plot क्या होता है? Scatter plot generally gives you the relationship between two variables. टू वेरिएबल्स के बीच में डॉट प्लॉट आपको देता है एक्स और वाई के बीच में। तो एज और हेल्थ स्कोर अगर आपके दो वेरिएबल्स हैं और आपको स्कैटर प्लॉट बताना है, तो ये वेरिएबल आपको जनरली बताएगा कि रिलेशनशिप क्या है दोनों वेरिएबल्स के बीच में। नाउ सेकंड पॉइंट इज वी हैव टू कंप्यूट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड वी हैव टू शो दैट इज देयर एनी सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड हेल्थ स्कोर। तो आपको ये परफॉर्म करना है। फर्स्ट we have to perform the scatter plot. Scatter plot कैसे बनाएंगे? हेल्थ डेटा फाइल में go to graph, go to legacy dialogs and go to scatter dot plot. Click on simple scatter. Define x axis पर आपको एज रखना है, y axis पर आप रखेंगे हेल्थ स्कोर को, and click on OK. You will get this type of scatter diagram. कैसे मिलेगा हमें अभी हम देखते हैं इसको। Now we are going to perform the scatter plot. First we have to go to the graph. Graph पर जाएंगे। First you should move towards the graph, then click on graph, go to legacy dialog, go to scatter dot plot, click on it. We have different options are there. Click on simple scatter plot, go to define. X axis is defined as age, y axis defined as health score. Click on OK. See, this one gives you the, simply once you draw the line, this will give you the, this one line, this line gives you in a this direction, like this one. This is the direction of negative correlation. तो इससे जनरली लोग हेल्थ स्कोर से इसको डॉट प्लॉट बनाते हैं, शो करते हैं कोरिलेशन को स्कैटर प्लॉट से, लेकिन बेटर होता है कि यू हैव टू परफॉर्म द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, यू हैव टू फाइंड आउट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो इस तरह से, जिस तरह से डॉट प्लॉट पे अगर आप लाइन एक ड्रॉ करें तो ये इस तरह से लाइन आएगी, और ये दिस लाइन शोज द नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स एज एंड हेल्थ ऑफ अ पर्सन। तो इसको अगर हम परफॉर्म करें, इस चीज को वेरीफाई करना है हमें, तो गो टू analyze, go to correlate. We have two variables, then click on bivariate. Bivariate means two variables. Go to analyze, go to correlation, go to bivariate. और आपका कौन से वेरिएबल्स हैं? एज ऑफ अ पर्सन एंड हेल्थ स्कोर। एज ऑफ अ पर्सन एंड हेल्थ स्कोर पे आप क्लिक करेंगे एंड यू विल गेट द कोरिलेशन
No need to change anything. Click on continue. Pearson, by default, you are interested in Pearson correlation because it is continuous. Click on OK, and you will get the age and health score. This value gives you the minus 0.684. Minus 0.684 means negative, minus 0.7. This shows you the strong negative correlation. 0.7 not a bad correlation. Point is 2, you can say that it is close to 1. Minus 1 means minus 0.7 strong negative correlation between two variables, age and health score. And 0.00 means less than 0.05, there is a significant correlation between age and health score. So you can say that there is a strong negative correlation between age and health score, and there is a, because p value shows sig value, that is 0.00, that means this p value is less than 0.05, means there is a significant correlation between age and health score. तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं कोरिलेशन का किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में. Now come to the next point. Comparing means of using one-way ANOVA. One-way ANOVA means ANOVA's full form is analysis of variance. One way means one we have a single factor which is responsible for the variation in the experiment. One way ANOVA means there is a one directional variation. One factor is responsible for the variation. And when we use one way ANOVA, and what is ANOVA? ANOVA is used to check the significant difference between several means. Means अगर दो से ज़्यादा ग्रुप हैं, 3 or more than 3 groups, we want to check that is there any significant difference between several means. We use the concept of ANOVA. And if we have two groups, दो ग्रुप्स के बीच में अगर हमें पता करना है तो हम यूज करेंगे सिंपली इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट. लेकिन अगर हमारे पास दो से ज्यादा ग्रुप हो जा रहे हैं और हमें ग्रुप में किसी पार्टिकुलर फैक्टर, सिंगल फैक्टर के बीच में वेरिएशन चेक करना है तो हम वन वे अनोवा का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. अनोवा कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे. नाउ अकॉर्डिंग टू आवर डेटा, suppose a researcher wish to test is there any significant difference in the mean health score of a people belonging to different income groups. Means you are interested to check that is there any significant difference between the mean health score of different income groups. How many income groups you have? You have, just see the data. डेटा हम लोग देखते हैं. डेटा में वेरिएबल व्यू में गए और मंथली इनकम का जब हमने कॉलम चेक किया तो हमारे पास कितने ग्रुप थे? वी हैव 4 कैटेगरीज, 0 1 2 3, 4 कैटेगरीज, 4 ग्रुप्स ऑफ मंथली इनकम्स आर देयर. एंड वी वांट टू वेरीफाई दैट कि ये जो मंथली इनकम है इनका हेल्थ स्कोर पे क्या कोई इंपैक्ट है कि नहीं. तो अगर ये दो ग्रुप होते तो सिंपली हम चेक कर लेते किससे? इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट से, जैसे हमने जेंडर का परफॉर्म किया है. लेकिन हमारे पास यहाँ पर दो से ज्यादा ग्रुप हैं, 3 एंड मोर देन 3 ग्रुप्स. देन वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनोवा एंड वी हैव सिंगल फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन. देन वी यूज द वन वे अनोवा. देखिए तो हमारी नल हाइपोथेसिस क्या हो गई? H naught such that mu naught is equal to mu1 is equal to mu2 is equal to mu3. Mu naught means first group, mu1 means second group, mean of second group, mu2 means third group, mu3 means fourth group. So हमारे पास कितने ग्रुप हैं? 4 groups are there. and इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे? in the terms of statement, there is no significant difference between income groups with respect to average health score. अल्टरनेटिव क्या हो गई? एटलीस्ट वन ग्रुप इज डिफरेंट. आप क्लेम कर रहे हैं कि एटलीस्ट वन ग्रुप हमारा एटलीस्ट डिफरेंट है. नहीं, उनमें आपस में फर्क है. जो पैसे अर्न कर रहे हैं डिफरेंट ग्रुप्स, पैसे के अकॉर्डिंग उनके हेल्थ स्कोर में भी फर्क है. और नल हाइपोथेसिस क्या हो गई? नो, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन हेल्थ स्कोर, एवरेज हेल्थ स्कोर अकॉर्डिंग टू मंथली इनकम. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बिकॉज एनोवा इज
We know that ANOVA is parametric test. So before going forward for the ANOVA, before trying to move towards the ANOVA, first we have to check that our data follow the normality assumption or not. And what is our data? What is our variable? Health score. और health score already हम check कर चुके हैं कि हमारा data जो है वो already follow करता है, health score हमारा normality follow कर रहा है. तो हमें क्या check करना है? सिंपली अब हमें इंप्लीमेंट कर देना है वन वे एनोवा को. वन वे एनोवा किस तरह हम परफॉर्म करेंगे? गो टू एनालाइज, गो टू कंपेयर मीन, गो टू वन वे एनोवा, go to health score into the dependent list and monthly income into the factor box. अब इसको हम देखते हैं इसको किस तरह परफॉर्म करेंगे. Now come to the SPSS file. Now this is our data set. Go to analyze, go to compare mean. Go to analyze, go to compare means, then again go to one way ANOVA. See again, analyze, compare means, go to one way ANOVA. Click on it. Click कर दिया हमने. What is your dependent list? Dependent list means the variable in which you are interested. Click on it. Click कर दिया हमने. What are the factors? यानी कौन सा फैक्टर है जिसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है हेल्थ स्कोर में फर्क है या नहीं, चेंजेस है नहीं. तो आप सिंपली कौन सा है, मंथली इनकम इज योर फैक्टर. क्लिक ऑन इट. नाउ there are various options are there. Contrast, no need to change anything. Click, no need to click in this section. Post hoc test. Post hoc test क्या होता है? Generally post hoc test is used when we reject our null hypothesis in ANOVA. यानी अगर हमारी hypothesis reject हो जाती है ANOVA में, तब हम post hoc test यूज करते हैं. पोस्ट हॉक टेस्ट क्या होता है? पोस्ट हॉक टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज मल्टीपल कंपैरिजन टी टेस्ट और पेयर वाइज मल्टीपल कंपैरिजन टी टेस्ट. तो जब रिजेक्ट हो जाती है हमारी हाइपोथेसिस, नाउ वी आर गोइंग टू चेक दैट विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन. कौन सा फैक्टर है, कौन सा ग्रुप है जो वेरिएशन के लिए वेरिएशन आ रहा है जिसकी वजह से हमारे डेटा सेट में, हमारे आउटपुट में. तो ये हमें चेक करना होता है. अगर एक्सेप्ट हो जाती है हमारी हाइपोथेसिस तो सिंपली हमारे जो ग्रुप्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे और हमें फर्दर प्रोसीड करने की जरूरत नहीं है, हमें टेस्ट इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है. नो नीड टू चेक एनी, नो नीड टू इंप्लीमेंट एनी टेस्ट आफ्टर एक्सेप्टिंग द हाइपोथेसिस. लेकिन अगर हमारी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जा रही है तब हमें चेक करना होगा कि विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन. तो सपोज करिए कि हमने अभी यहाँ पर टुकी टेस्ट, you can perform the Tukey test. Various tests are there: Bonferroni test, Sheffer test, Tukey test, Duncan test. So just use the Tukey test. Click on Tukey test, click on continue, click on OK. अब देखिए हमारी इस केस में बिटवीन ग्रुप्स एंड विद इन ग्रुप्स हमारी जो सिग्निफिकेंट वैल्यू आ रही है एनोवा की टेबल में, जो हमारी पी वैल्यू आ रही है, दैट गिव्स यू 0.340. हमारी पी वैल्यू कितनी आ रही है? 0.340 आ रही है. 0.340 मींस ये हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है बिकॉज पी वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.05. सो आवर हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड. नल हाइपोथेसिस हमारी एक्सेप्ट हो रही है क्योंकि पी वैल्यू हमारी ग्रेटर आ रही है 0.05 से. तो कौन सा स्टेटमेंट हमारा एक्सेप्ट हो गया? ये स्टेटमेंट हमारा एक्सेप्ट हो गया. H नॉट सच दैट mu naught is equal to mu1 is equal to mu2 is equal to mu3. According to statement, that means there is no significant difference between monthly income groups with respect to average health score. यानी जो health score है हमारे, वो health score हमारा different income group के according उनमें आपस में फर्क नहीं है. कोई कम अर्न कर रहा है या ज्यादा अर्न कर रहा है, डेटा के अकॉर्डिंग उनके हेल्थ स्कोर में किसी तरह का कोई चेंज नहीं है. हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है, नल हाइपोथेसिस स्टेटमेंट एक्सेप्ट हो रहा है. तो अब जब हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है, दैट मींस स्टॉप इट हियर, नो नीड टू परफॉर्म द पोस्ट हॉक टेस्ट. कुछ लोग लगा देते हैं, यहां पर हमने इसलिए लगाया कि आपको बता सकें ये पार्टिकुलर केस है. अगर रिजेक्ट होती तभी आपको लगाने की जरूरत है. अगर यहाँ एक्सेप्ट हो जा रही है तो फर्दर हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर एक्सेप्ट हो गई दैट मींस सारे ग्रुप्स इक्वल हैं. हमें क्या करना है, जरूरत क्या है चेक करने की?
अगर यहाँ पर रिजेक्ट हो रही है, दैट मीन्स वी हैव टू चेक दैट विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन। अब पोस्ट हॉक टेस्ट से भी आप देख लीजिए, यहाँ एक्सेप्ट हो रही है तो बाकी भी एक्सेप्ट होंगे। देखिए पेयर वाइज कंपैरिजन है। देखिए फर्स्ट ग्रुप कौन सा है, बिलो 2000, बिलो 2000 रिमेनिंग ग्रुप से कंपेयर करें। देखिए बिलो 2000 को जब 2004 से 4000 ग्रुप से कंपेयर कर रहे हैं तो पी वैल्यू आ रही है 0.899, ग्रेटर देन 0.05। फिर इस ग्रुप को दूसरे ग्रुप से रिमेनिंग ग्रुप से कर रहे हैं, यहाँ भी पी वैल्यू ग्रेटर आ रही है 0.05 से, यहाँ भी ग्रेटर आ रही है। फिर जितने भी कंपैरिजन हो सकते हैं सभी में देखिए 0.05 से ग्रेटर आ रही है। इसका मतलब क्या है, if p value is greater than 0.05 means there is no significant difference between groups। below 2000 का 2000 से 4000 यानी जीरो ग्रुप का 1 ग्रुप से, जीरो ग्रुप का 2, जीरो का 3 से सारी वैल्यू पी वैल्यू ग्रेटर आ रही है 0.05 से। इसका मतलब आपस में कोई फर्क नहीं है। अगर यहां पर रिजेक्ट हो जाती हाइपोथेसिस तो एटलीस्ट यहां पर कोई न किसी एक केस में हम देखते कि हमारी हाइपोथेसिस पी वैल्यू लेस देन 0.05 होती और हम कहते हैं कि यस दिस ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ the one way ANOVA analysis। okay, now we are going to the next section, simple linear regression analysis। what is simple linear regression analysis? regression analysis कब हम यूज करते हैं, correlation gives you an idea about what is the strength and direction between two variables। यानी रिग्रेशन हमें कोरिलेशन क्या बताता है, स्ट्रेंथ और डायरेक्शन क्या है, हाउ टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड विथ ईच अदर। एंड रिग्रेशन एनालिसिस क्या है, बेसिकली प्रिडिक्टिव टेक्निक है, प्रिडिक्शन टेक्निक है। तो प्रिडिक्शन टेक्निक क्यों कह रहे हैं इसे, प्रिडिक्शन टेक्निक इसलिए कह रहे हैं कि रिग्रेशन एनालिसिस इज यूज्ड टू चेक द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल independent variables। regression analysis is used to predict the dependent variables on the basis of several independent variables। यानी डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशनशिप है इसको प्रिडिक्ट करना है तो रिग्रेशन एनालिसिस यूज करते हैं। यानी यूनिट इंपैक्ट किसी पार्टिकुलर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक यूनिट चेंज होने पर डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या फर्क पड़ता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि एज एंड हाइट एंड वेट बोथ आर पॉजिटिव कोरिलेशन, या यूं कह लें हमने एग्जांपल लिया था एज एंड हेल्थ स्कोर। एज आपकी थी, हेल्थ स्कोर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल था, एज हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था सपोज करिए। तो आपको देखना है कि एक यूनिट एज में चेंज होने पर हेल्थ स्कोर में क्या चेंज हो रहा है, कितने पॉइंट चेंजेस आ रहे हैं। इस चीज को अगर आपको प्रिडिक्शन टेक्निक इसीलिए कह रहे हैं कि व्हाट इज द यूनिट चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट में क्या इंपैक्ट हो रहा है, इस चीज की अगर आपको एनालिसिस करनी है तो हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस का। सो सिंपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस इज यूज्ड व्हेन वी हैव सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल एंड सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे आपको पता करना है कि एज एंड हेल्थ स्कोर डिपेंडेंट वेरिएबल है और एज आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आपको पता करना है कि एज और हेल्थ स्कोर, एज हो गया आपका यहाँ पर एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और एज आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। सपोज करिए यू आर इंटरेस्टेड टू नो दैट is in this case in simple linear regression model your model is y is equal to alpha beta naught plus beta 1x, y is equal to beta naught plus beta 1x plus e। that means y is equal to y is response variable, you can say that dependent variable। what is beta naught? Beta naught is your intercept, means value of y when x is equal to 0। what is beta 1? Beta 1 is your regression coefficient, means rate of change of y as x changes। and what is e? is your error। लेकिन अगर आपका एक से ज्यादा वेरिएबल हो गए then we use the concept of multiple linear regression। multiple linear regression जैसे अगर हम कहें if you want to know the if you want to know the yield of crop आपको पता करना है कि कितनी yield हुई है इस साल, और
आपके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सपोज आपको पता करना हो कि सॉइल का इम्पैक्ट चेक करना हो यील्ड ऑफ क्रॉप में, आपको वेदर का इम्पैक्ट पता करना है, आपको टेम्परेचर का इम्पैक्ट क्या है यील्ड ऑफ क्रॉप में, 3 वेरिएबल्स हैं आपके पास। तो इस केस में मॉडल हमारे कितने हो गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल? टेम्परेचर, वेदर, सॉइल, ये 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। और डिपेंडेंट क्या है? हमारा यील्ड ऑफ क्रॉप। तो यहाँ पर हमारे 3 वेरिएबल्स हो गए। देन वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ, अगर 2 भी होते तब भी हम मल्टीपल रिग्रेशन यूज करते। 3 हो गए, 2 और मोर देन 2, वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन। तो इस केस में हमारा मॉडल हो जाएगा y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू प्लस बीटा थ्री एक्स थ्री प्लस ई। सो ई इज द एरर एंड फॉलोज नॉर्मल विद मीन जीरो एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें सिंपल लीनियर रिग्रेशन है, हमारे पास सिंगल वेरिएबल है, तो हमें चेक करना है कि कोरिलेशन हम देख चुके हैं ऑलरेडी। क्योंकि आप रिग्रेशन अगर परफॉर्म करने जा रहे हैं तो आपका जो कोरिलेशन उन वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन कुछ ना कुछ होना चाहिए, एटलीस्ट कोरिलेशन उनके बीच में होना चाहिए, तभी वो आपस में रिलेशन होगा, तभी उसका एक इम्पैक्ट आ पाएगा। तो सबसे पहले परफॉर्म करने से पहले एटलीस्ट आप चेक कर लीजिए कि उनके बीच में कोरिलेशन है या नहीं है। हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं एज और हेल्थ स्कोर के बीच में। अब एज और हेल्थ स्कोर में एक यूनिट चेंज होने पर क्या इंपैक्ट होता है हेल्थ स्कोर में, इसका अगर हमें चेक करना है, देन वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। सो वी यूज गो टू एनालाइज, go to regression, go to linear, then go to analyze, we use the concept of regression, go to linear, then again we get this window, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा हेल्थ स्कोर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा एज है, एस्टिमेट्स, कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड मॉडल फिट, सेलेक्ट नॉर्मेलिटी प्लॉट्स and no need to check anything. This will gives you the following sections. Now come to the SPSS file. SPSS file में हम आते हैं और देखते हैं before going how to perform the simple linear regression. So this is the command for simple linear regression. Go to analyze, go to regression, go to analyze, go to regression, click on linear. What is your dependent variable? Health score is your dependent variable. What is your independent variable? Age is your independent variable. और आप ये देख चुके हैं, first you have to check that health score and age of a person, is there any correlation? And we already verified that there is a strong negative correlation, and वो वैल्यू क्या थी? -0.7 थी। तो हम ये ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। अब हमें देखना है कि एक 1 यूनिट चेंज, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ 1 यूनिट चेंज इन द एज एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन हेल्थ स्कोर। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारा है एज, उसका हेल्थ स्कोर में क्या फर्क आएगा अगर एक यूनिट चेंज होता है। तो इस चीज की स्टडी के लिए हम रिग्रेशन एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। नो नीड टू चेंज एनीथिंग, गो टू स्टैटिस्टिक्स, एस्टिमेट्स बाय डिफॉल्ट, मॉडल स्क्वायर, कॉन्फिडेंस इंटरवल, click on it, continue. What are the estimates? Confidence interval, model fit, continue. Plots, click on normal probability plots, continue. Options, no need to change anything, continue, click on OK. अब देखिए हमें आउटपुट क्या मिलेगा। सो आर स्क्वायर इज योर नेगेटिव कोरिलेशन, ये कोरिलेशन बता रहा है हमारा। ये जो बताया था आपका आर क्या दे रहा है आपका, वहां पर क्या था, ये दिस वैल्यू गिव्स यू द -0.684 ये जो वैल्यू आपने बताई थी ये वहां पर आ रही थी हमारी आर स्क्वायर वैल्यू। ये देखिए आर स्क्वायर आपको क्या देता है, एडजस्टेड आर स्क्वायर या आर स्क्वायर, जनरली हम एडजस्टेड आर स्क्वायर कंसीडर करते हैं। यहाँ हमारी एडजस्टेड आर स्क्वायर वैल्यू आ रही है 0.44। सबसे पहले हमें मॉडल समरी देखनी है। मॉडल समरी में हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू आ रही है 0.44। मैंने बताया था आपको कि आवर डेटा इज हाइपोथेटिकल, जो हमने यहाँ पर डेटा सेट कंसीडर किया है वो हाइपोथेटिकल डेटा है। यानी मॉडल समरी एडजस्टेड आर स्क्वायर शोज दैट 0.44 मीन्स 44% ऑफ द वेरिएबिलिटी डिफाइंड बाय द मॉडल, 44% ऑफ द वेरिएंस एक्सप्लेन्ड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये अच्छा मॉडल नहीं है। कब अच्छा होगा,
जब 0.5 से अबव होगा, 0.6 एंड अबव, व्हेन इट इज क्लोज टू 100%। तो 44% वेरिएबिलिटी बता रहा है, तो ये मॉडल अच्छा नहीं है इस केस में, चूंकि हमारा हाइपोथेटिकल डेटा है और हाइपोथेटिकल डेटा लेने की वजह से हो सकता है ये चेंज आया, हो सकता है इंक्रीज करें तो बेटर हो जाए। लेकिन अगर ये वैल्यू, इस केस में हमारा हाइपोथेटिकल डेटा है, ये बेटर वैल्यू नहीं आ रही, तो हमें क्या करना होगा, हमें और सैंपल्स की जरूरत होगी। हम हमारे डेटा के अकॉर्डिंग ये अच्छा मॉडल नहीं है। लेकिन सपोज करिए कि अब हमें जस्ट फॉर दिस डेटा सेट इज यूज जस्ट फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पस, तो अगर ये वैल्यू कब अच्छी होगी, जब 0.6 से अबव, कुछ लोग कहते हैं 0.5 अगर आती 50% वेरिएबिलिटी डिफाइन करता है तो बेटर है, लेकिन इट्स बेटर टू यूज 0.6 एंड अबव, यानी 60% एंड अबव वेरिएबिलिटी अगर डिफाइन कर रहा है मॉडल, तब हमारा तो हम कहेंगे कि हमारा जो मॉडल है वो बेटर परफॉर्म कर रहा है। 50% 60% of the variability defined by the model और 60 and above % variability explained by the model, अगर ऐसा है तब हम कहेंगे कि मॉडल हमारा बेटर है। देखिए रिग्रेशन इस केस में हमारा 0.00 आ रहा है, दैट मींस देयर इज अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है हमारा एरर का, सिग्निफिकेंट वेरिएशन है, यानी हाइपोथेसिस हमारी इस केस में रिजेक्ट हो रही है। नाउ कम टू द कोफिशिएंट y इज इक्वल टू, इस केस में हमारा चूंकि हम परफॉर्म क्या कर रहे हैं, y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स, y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स हम परफॉर्म कर रहे हैं। दैट मींस y इज इक्वल टू अल्फा y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1x, हमारे पास सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारा इस केस में, एज ऑफ अ पर्सन। व्हाट इज आवर डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल इज हेल्थ स्कोर। तो इस केस में हम देखें जो बीटा नॉट की वैल्यू आ रही है, वो हमारी बीटा नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है, बीटा नॉट आ रही है 95। व्हाट इज बीटा वन वैल्यू, -1.269, यानी बीटा वन की वैल्यू आ रही है -1.269 माइनस में। और हमने देखा था निगेटिव कोरिलेशन भी आ रहा था, इसीलिए हमें निगेटिव मिल रहा था, क्योंकि निगेटिव होगा, एज जैसे जैसे इंक्रीज करेगी आपका हेल्थ स्कोर डाउन होगा। और पी वैल्यू कितनी आ रही है, 6.00, पी वैल्यू एज ऑफ अ पर्सन की पी वैल्यू कितनी आ रही है, p value is 0.00, that means if p value is less than 0.05 of any independent variable in coefficients, then we can say that this particular independent variable play a significant contribution in the health score, यानी -1.269 यूनिट चेंज हो रहा है, तो उसके आउटपुट पे क्या असर आएगा, हम अगर मॉडल में बीटा वन की जगह अगर बीटा नॉट y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स, यानी x की वैल्यू पुट करें और बीटा वन की जगह -1.269 पुट करें वैल्यू, और 95 बीटा नॉट की वैल्यू लें, तो y की वैल्यू क्या आएगी, यानी एक -1.269 ये बीटा वन की वैल्यू है, निगेटिव आ रही है। निगेटिव इसीलिए आ रही है क्योंकि निगेटिव कोरिलेशन होता है एज और हेल्थ स्कोर में। और सिंपली हम पी वैल्यू से देख सकते हैं कि पी वैल्यू प्ले अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, प्ले अ वाइटल रोल, means this independent variable age of a person play a significant role in this model। और मॉडल क्या था हमारा, हेल्थ स्कोर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल था, यानी हेल्थ स्कोर को डिटरमिन करने में एज ऑफ अ पर्सन सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है। लेस देन 0.05 है, अगर ग्रेटर होता 0.05 में तो हम कहते हैं कि नहीं, सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर नहीं है एज ऑफ अ पर्सन, लेकिन इस केस में 0.000 आ रहा है, दैट मीन्स it is less than 0.05, so we can say that age of a person play a significant contribution in this model। So this is the QQ plot, no need to check this। So analysis of covariance is used। एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस कब हम यूज करते हैं, एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस जनरली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ANOVA and the regression analysis। ANOVA और रिग्रेशन एनालिसिस का कॉम्बिनेशन होता है। कब यूज करते हैं, टू एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ वन नॉमिनल इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन अ कॉन्टिन्यूअस डिपेंडेंट वेरिएबल एंड कंट्रोलिंग द इफेक्ट ऑफ
another variable. यानी एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस कॉन्सेप्ट में हमारा एक कंकॉमिटेंट भी होता है, कंकॉमिटेंट वेरिएबल या कोवेरिएट वेरिएबल, और वो कोवेरिएट यानी जो भी हमारा अंडर स्टडी वेरिएबल है उससे एसोसिएटेड एक वेरिएबल होता है जो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए जो है ना वर्ड यूज करते हैं, कंट्रोलिंग द इफेक्ट ऑफ अनदर कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, एंड दिस कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल directly affected that variable, that dependent variable. तो एनुकोवा कॉम्बिनेशन है किसका, रिग्रेशन एनालिसिस और हमारा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का। सपोज अ रिसर्चर वांट टू चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ 3 टीचिंग मेथड्स, effectiveness of 3 different teaching methods on a result of students controlling the effect of family income on result. यानी अगर हमारे पास अगर हमें इन्वेस्टिगेटर को ये फाइंड करना है कि रिसर्चर वांट टू चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ 3 डिफरेंट टीचिंग मेथड्स, 3 डिफरेंट टीचिंग मेथड्स हैं हमारे, और उन मेथड्स का रिजल्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स पर क्या इंपैक्ट है बाय कंट्रोलिंग द इफेक्ट ऑफ फैमिली इनकम। यानी फैमिली इनकम जो एक अनदर वेरिएबल है, अदर वेरिएबल है जो इंपैक्ट डाल रहा है रिजल्ट्स में, क्या कोई सिग्निफिकेंट इंपैक्ट है डिफरेंट टीचिंग मेथड्स का, इसका अगर हमें स्टडी करनी है तो हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस का। तो इस केस में हमारे पास नॉमिनल इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाएगा, टीचिंग मेथड्स। कौन कौन से टीचिंग मेथड्स हैं, 1 2 3 डिफरेंट टीचिंग मेथड्स। व्हाट इज आवर कॉन्टिन्यूअस डिपेंडेंट वेरिएबल, results is our continuous dependent variable. What is our covariate, family income is our covariate. देखिए हमें हमारी हाइपोथेसिस क्या हो गई इस केस में, there is no significant difference in the effectiveness of 3 different teaching methods after controlling the family income. तो हमारा जो फैमिली इनकम है बेसिकली ये कोवेरिएट का रोल प्ले कर रहा है। यानी कोवेरिएट, मैंने बताया था कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में एक कोवेरिएट होगा जो एसोसिएटेड होता है अंडर स्टडी वेरिएबल से, और अंडर स्टडी वेरिएबल क्या है, रिजल्ट है आपका, और रिजल्ट 3 डिफरेंट टीचिंग मेथड्स का इंपैक्ट आपको चेक करना है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन इन द इफेक्टिवनेस ऑफ 3 डिफरेंट टीचिंग मेथड्स आफ्टर कंट्रोलिंग द फैमिली इनकम। सो देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, हमारी हाइपोथेसिस हो गई अल्टरनेटिव, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द इफेक्टिवनेस ऑफ 3 टीचिंग मेथड्स आफ्टर कंट्रोलिंग द फैमिली इनकम। तो कोवेरिएट इज द फैमिली इनकम, कॉन्टिन्यूअस डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा हो गया रिजल्ट, और नॉमिनल इंडिपेंडेंट टीचिंग मेथड्स हो गए। तो अब इसको अगर हम परफॉर्म करेंगे तो कमांड क्या होंगे, गो टू एनालाइज, गो टू जनरलाइज लीनियर मॉडल, क्लिक ऑन यूनिवेरिएट, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या हो गया, मार्क्स हो गया, एंड फिक्स्ड फैक्टर विल बी टीचिंग मेथड्स एंड कोवेरिएट्स विल बी इनकम। नाउ कम टू द SPSS फाइल। SPSS फाइल में हम देखेंगे we have different data set. See, there are 3 groups. We have teaching methods. How many teaching methods are there? Method 1, method 2, method 3. और हमें क्या चेक करना है कि ये 3 डिफरेंट टीचिंग मेथड्स का क्या इंपैक्ट है मार्क्स पर, और बाय कंट्रोलिंग द इफेक्ट ऑफ मंथली इनकम। तो हमारे पास मार्क्स भी गिवन है एंड इनकम भी गिवन है। ये देखिए ग्रुप्स, marks and income. So what are the commands to perform the analysis of covariance? Go to analyze, go to generalize linear model, go to univariate. Okay, go to analyze, go to generalize linear model, go to univariate. What is our dependent variable? देखिए हमारा dependent variable क्या था, dependent variable था हमारा marks, fixed factor will be teaching methods, एंड क्योंकि ग्रुप है और कोवेरिएट क्या है हमारी इनकम है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे मार्क्स हो गए, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे मार्क्स हो गए, टीचिंग मेथड्स हमारा फिक्स फैक्टर हो गया, मंथली इनकम हमारा कोवेरिएट हो गया। और सिंपली हम परफॉर्म करेंगे मॉडल में, फुल फैक्टोरियल है, नो नीड टू चेंज एनीथिंग, नो नीड टू चेंज एनीथिंग, क्लिक ऑन कंटिन्यू, एंड इन दिस केस just see the values. All values shows that 0.00 corrected model. This value gives you the 0.00, means there is a
देयर इज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, यानी करेक्टेड मॉडल की यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है, देखिए आप, मॉडल की वैल्यू क्या आ रही है 0.00, और आर स्क्वायर की वैल्यू हम लोग देख पा रहे हैं, एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू लास्ट में इन द बॉटम ऑफ द टेबल कितनी आ रही है 0.86, मींस 86% ऑफ द वेरिएबिलिटी डिफाइंड बाय द मॉडल। 86% वेरिएबिलिटी डिफाइन कर रहा है मॉडल। मॉडल आपका गुड मॉडल है, बेस्ट गुड फिट है, यानी 86% वेरिएबिलिटी बहुत अच्छा होता है। और 0.00 मींस सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है, कौन कौन से, यानी जो टीचिंग मेथड्स हैं, रिजेक्ट हो रही है हाइपोथेसिस आपकी, सिग्निफिकेंट वैल्यू 0.000 मींस लेस देन 0.05, एंड यू कंक्लूड दैट the different teaching methods, this is your hypothesis, means there is reject the null hypothesis according to p value, and we can say that you accept this one. There is a significant difference in the effectiveness of three teaching methods after controlling the income, यानी जो 3 डिफरेंट टीचिंग मेथड्स हैं उनमें आपस में फर्क है बाय कंट्रोलिंग द इफेक्ट ऑफ फैमिली इनकम। और इसीलिए मैं इसको कह रहा हूं कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एनोवा एंड रिग्रेशन मॉडल, एंड देयर इज व्हेन यू अप्लाई एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस, there is a covariate, there is a concomitant variable in it. So ANOVA is the combination of regression analysis and the analysis of variance, ANOVA and regression analysis. इसीलिए हमें एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 86%, और इस पी वैल्यू से हम रिजल्ट को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। सो थैंक यू एवरीवन, thank you so much for the this evening. Any query, anyone? Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. And thank you, everyone. तो अब कोई किसी का कोई क्वेश्चंस हो, कोई पूछना चाहता है, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल एंडेड इट। सर मॉडरेशन इफेक्ट भी चेक किया जाता है इसमें, वो क्या होता है? कहाँ पर मॉड्यूलेशन इफेक्ट, किसमें? सर एसपीएसएस में सर चेक करते हैं, वो क्या होता है? मॉड्यूलेशन इफेक्ट, यस सर। मॉड्यूलेशन इफेक्ट जनरली कभी कदार ये होता है, आप जनरली क्या होता है कि अलग अलग डिफरेंट एजुकेशन फील्ड में, ऐसा तो मैंने अभी नहीं देखा, क्या होता है कि कुछ लोग डिफरेंट फील्ड में उसी पार्टिकुलर टेक्निक का कुछ दूसरा नाम होता है, और स्टैटिस्टिक्स में कुछ दूसरा उसको कहते हैं, टर्मिनोलॉजी यूज होती है। तो अभी तक तो मैंने, मुझे ऐसा नहीं समझ में आता, ये नहीं देखा मैंने, मे बी सम चेंजेस। आप किस चीज़ में यूज़ कर रहे हैं, मतलब किस ऑब्जेक्टिव में? सर एसपीएसएस में ही होता है, मॉडरेशन इफेक्ट चेक करते हैं। मॉडरेशन इफेक्ट, मॉडरेशन यस इफेक्ट। सर, यस सर, यस सर। तो मॉडरेशन इफेक्ट मतलब किस चीज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हैं मॉडरेशन इफेक्ट, तो मैं बता पाऊंगा। सर एक्चुअली मुझे अभी आइडिया नहीं है इसका, बस मुझे टर्मिनोलॉजी मिला था तो वही पूछ रही थी। नहीं, एक्चुअली अभी तो मतलब मॉडरेशन इफेक्ट किस एस्पेक्ट में है, ये चीज़ तो मुझे अभी देखना होगा। अगर आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, अगर बता पाएँ तो मैं बेटर समझ पाऊंगा उसको, कि यहाँ पर मुझे यूज़ करना है मॉडरेशन इफेक्ट। तो किसी पार्टिकुलर टेक्निक के लिए आप कह रहे हैं तो मैं बेटर बता पाऊंगा। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं चेक कर लूँगा क्या चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं। ओके सर, थैंक You can contact me, you can mail me, I will यू। respond you. ओके सर, थैंक यू सर। Okay, thank you. ओके, थैंक यू एवरीवन। एक गूगल फॉर्म का रिव्यू दीजिएगा आप अपने इस पे ना। मैंने गूगल फॉर्म का चैट बॉक्स में किया है और उस पे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाला है। तो गिव योर रिव्यू रिगार्डिंग दिस वर्कशॉप, है ना? ओके, so I think there is okay. There is no any questions regarding this. We will send you the certificate in your register email ID. Okay. I think it's okay, sir. Okay, fine. Thank you. है ना? Okay, Thank everyone. Thank you. thank you. Thank you. Come for this workshop. Okay, everyone. Thank you. Thank Thank you you. so much. Thank Thank you. you. अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा आप लोग ना। Thank you. Thank you. Give us your review. ठीक है ना? अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। Okay, thank you so much. Give your review. Okay, okay.
थैंक यू, थैंक यू। ओके, सब लोग अपना स्मृति, देवराजू, गुरलाना मैम, नूपुर, शिवानी शर्मा, आ, रोसाना तो ऑलरेडी दे चुकी है, सयोनी हैव ऑल्सो, है ना। सब लोग अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा ना, रिव्यू जरूर देना आप लोग, बिल्कुल। एंड पीपीटी वी विल प्रोवाइड योर रिकॉर्डेड क्लासेस बाय टुमारो। हम लोग स्मृति, देयर इज नो प्रॉब्लम, वी विल प्रोवाइड यू द रिकॉर्डिंग, है ना। और यू कैन, okay, you can subscribe our YouTube channel also. There is a यहाँ पर वहाँ पर पूरी आपको इसकी वीडियो की रिकॉर्डिंग, वी विल प्रोवाइड द वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन दिस चैनल, ठीक है ना। वो चैनल भी मैं आपको कर देता हूँ, ओके, ठीक है। तो ओके सर, थैंक यू सर। यू कैन सब्सक्राइब दिस एंड यू कैन, वो उसको भी कर दीजिएगा, मैं इसी पर वीडियो पोस्ट करवा दूंगा कल, ठीक है। ओके, थैंक यू आजम सर, आजम सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन।